Respected members, hope you are all are doing well. First off, I would like to welcome our guest speaker, CA Abhishek Jain Sirji, and all our other respected members who are present in this webinar on the topic of entry cases involved in TDS compliance and insertion of new provisions. Before requesting our guest speaker Abhishek sir to start the session, let me read out brief profile about Abhishek sir. Sir is a practicing chartered accountant at Delhi as a partner of Kailash Chand and Company. Sir has delivered number of seminars on direct tax law matters like faceless assessments, ITR, tax audit report, taxation of securities, various matters related to TDS, accounting and taxation for derivatives, changes covered by Finance Acts, taxation of gifts, tax planning, etc. Sir has also delivered number of sessions on MSME covering various topics like registration, benefits, Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, mission schemes for MSME policies and regulation, MSME Samadhan, MSME Sambandh, MSME framework, startup, financial restructuring, along with frequently asked questions. Sir is a co-opted member of NIRC of ICI and has been honored by various government, private, and social organizations for Sir's contribution in the field of taxation, for creating general awareness on various aspects of taxation, like Indian Post, Department of Publications, BECIL, Mini Ratna of Central Government of India, Honda Trust, etc. Sir has also authored and being a faculty of Direct Tax Law and International Taxation, Tax Management and Practice, Advanced Tax Laws and Practice. May I now request CA Abhishek Jain sir to please start the session. Thank you, sir. Thank you, Jitendra ji. And thanks a lot. I believe there is some echo sound there. Thanks a lot, Gurugram branch. Our chairman Mohit Bhai and secretary Jitendra ji and entire team. Before I proceed, I can see Jagjit Bhai is over here, and I believe Namaskar Jagjit Bhai, NIRC elected member. Namaskar, brother Abhishek ji. How are you, sir? Absolutely fine. Absolutely fine. Very good evening, everyone. Very good evening, all the team members of Gurgaon branch. Thank you for sharing the link. Thank you. Thank you, Jitendra Bhai. Sir Abhishek ji, please charge. Yeah. Thank you. I can see all of you in this hot evening. Saroj Bhai is also there. I can see Preeti ji from Surat, Mukesh Bhai. Across the India, this is again a blessing in disguise, irrespective of the place where we are sitting out. We can have discussion rather than a session. It's again a discussion point, because nowadays it is very difficult to grasp the even fine language of the law. वो यही होता है कि भैया कई सर्कुलर कई नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं वन बाय वन. वी हैव इवन टुडे वी विल सी 194Q 206C1H. वो काफ़ी दिनों तक सर्कुलर नोटिफिकेशन आते रहे, उसके बाद में नए इंसर्शन RS तक हम पहुंच गए हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से जेड कंप्लीट कर चुके होंगे 2023 में ऑलमोस्ट, एंड देन वी विल हैव AA 194 AA. So it's again very today's topic is not even TDS, it's again a TDS. Namaskar Puneet Bhai, those whom I can see, welcome all of you. We should start the session straight away. As today's topic is concerned, first of all, we are even going to finalize our balance sheet related to financial year 21-22. And in a lot of questions that I come across over my YouTube channel, over various platforms, over mail, related to 194Q only. I believe more than 200 questions I have answered. And it's again, before finalizing our tax audit, we need to check twice the liability that is imposed on assessee, whether TDS has been properly deducted or not, on whom this particular liability is really imposed.
because some of the circular issued by the government are also really having a lot of confusion. Even you can see 194R, the language subsection 3, the power given circular issued by 119 का जो circular issue किया जाता है, that is not binding on, I believe all of you are agree, on SSC. वो डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है, एसएससी चैलेंज कर सकता है, पर आई बिलीव जहाँ तक मेरे को याद है अभी सबसेक्शन 3 दिया है उसका, उसमें साफ कहा ये बाइंडिंग होगा एसएससी पे भी। तो डिपार्टमेंट कि भैया आप अब ये सर्कुलर है जो 194 जो हम लेके आएंगे, जो पावर दिया गया कि फॉर रिमूव द डिफिकल्टीज, हर आप देखिए नाउ ए डेज, अभिषेक भाई नमस्कार। तो nowadays even अभिषेक भाई विल ऑल्सो एग्री, क्योंकि वो भी काफ़ी इन सब चीज़ों पे लिखते रहते हैं कि हर एक सेक्शन, खासतौर पे टीडीएस के सेक्शन के साथ एक पर्टिकुलर सबसेक्शन अटैच रहता है। गवर्नमेंट हैज गिवन पावर टू इशू एनी गाइडलाइंस टू रिमूव द डिफिकल्टीज। अब उनको पता है सेक्शन तो ड्राफ्ट कर दिया है, डिफिकल्टीज आने वाली है, वो हम एक सर्कुलर में या तो दूर कर देंगे या नहीं होगा तो 2 में 3 में तो कर ही देंगे। सो इन दिस वे द सेक्शंस आर ड्राफ्टेड। तो मैं शेयर करता हूं 194 क्यों, क्योंकि वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डिस्कस भी करनी चाहिए। उसके बाद में हम इन दोनों के बीच में देखेंगे कि अगर एसएससी के साथ में ऐसा होता है तो वाकई में आपस में क्रॉस होता है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो वहाँ लाइबिलिटी एक्चुअली किसकी होगी, क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। और वहाँ पे भी कई क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिए हैं, लाइक इन केस अगर गुड्स रिटर्न हो जाता है, और हमारे सबके साथ में ये सब चीज़ें हम फेस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन by Finance Act 2022. Yes, this is Finance Act 2022. एक्ट हो चुका है, ITR नोटिफाइड हो चुके हैं, स्कीमा आ चुकी है, तैयार रहे सब कंप्लायंस करने के लिए। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्लाइड एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। While discussing entire thing, simultaneously we will take some questions that I come across. It sounds very simpler, जितेंद्र जी, कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स बड़ा सिंपलर है, गुड्स परचेज करो टीडीएस दे दो। पर जिस तरीके से इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। Let's see one by one. First of all, any person being a buyer, meaning thereby, buyer means what? A person whose total sales, gross receipt, turnover from the business carried on by him exceed 10 crores. Mind it, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ा। 10 crores in preceding financial year. जिस फिनेंशियल ईयर में आप बैठे हैं, लेट्स अज्यूम वी आर सिटिंग ऑन 22-23, इफ आवर लायबिलिटी इज देयर टू डिडक्ट 194Q, देन वी नीड टू चेक आवर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट? मीनिंग देयर बाय 21-22। यहाँ एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन, क्या टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड है या 10 करोड़ में नहीं है? नहीं है, इट्स सिंपलर टर्नओवर, मीनिंग देयर बाय अगर आपने जो टर्नओवर में है अलग से दिखाया सेपरेट जीएसटी और जीएसटी की लायबिलिटी को, देन डेफिनेटली 10 करोड़ एक्सक्लूसिव GST. Now one question arise, I require attention of all of you, just means input from your side. Let's assume there is again a new organization, someone who started his business in the financial year 22-23, in which we are sitting right now. आपके पास आता है और बोलता है कि सर मेरा एक क्लाइंट से मेरे 50 लाख से एक्सीड आता हूं, वो 50 लाख वाला प्रोविजन भी 50 लाख से एक्सीड हो गया,
क्या मेरे को 194Q का TDS काटना, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड 22-23 कंपनी, तो क्या वहां पे TDS की लाइबिलिटी रहेगी? एनीवन, इफ यू कैन आंसर ऑन द चैट बॉक्स. नो. ईशु जी, थैंक यू. मीनल जी, थैंक यू. सुलभ जी, एब्सोल्युटली, थैंक यू. योगेश जी, absolutely. Reason being that we need to see previous year turnover. Thank you, Deepak sir. So one question answered. Who is responsible for paying any sum to any resident seller? वैसे मैंने क्वेश्चन आगे भी लिया, but simultaneously we can take related question through during the discussion only. So for purchase, as far as purchase is concerned, responsible for paying any sum to any resident seller, meaning thereby if seller is outside residing outside India, non-resident, then definitely applicability of this section will not be there. Fine enough. Next, of the value of aggregate of such value exceeding 50 lakhs rupees in any previous year, meaning thereby 21, applicability of this 194Q from 1st July 2021, right? तो 50 lakhs calculation. अब कई क्वेश्चंस आते हैं, वैसे मैंने क्वेश्चन आंसर में, फर्स्ट ऑफ ऑल, whether we need to check this 50 lakhs limit every year. Once any seller cross the limit of 50 lakhs, do we need to deduct TDS irrespective of the previous year turnover be seen? Yes, definitely, Sakshi ji. Yes, Sulabh ji is saying yes, every year we need to check 50 lakhs rupees. Any other answer? My question is whether we need to check 50 lakhs every year. Yes, definitely, every year we need to check. Thanks a lot, Sandhya ji, Pratik ji, Saroj bhai, Sakshi ji. 50 lakhs each and every year. Now next question, 50 lakhs. First, वैसे somewhere around 1st July 2021, I believe I delivered more than 30 to 35 session on this particular topic, because at that moment of time there was a lot of confusion in this regard. So I believe आप सब उससे मेरे ख्याल से सब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Now 50 lakhs every year, every seller, right? Aggregate. Now question arise, क्योंकि हमें audit करनी है. 1st April to 30th June का क्या करने का है? 1st April to 30th June, for the purpose of 50 lakhs, we need to check this particular 50 lakhs from 1st April. Let's assume any seller जिसने आपको 21 जून तक अगर 55 lakhs का सेल कर दिया है और जुलाई के अंदर अगर वो 10 lakhs का सेल करता है, कैन एनीवन लेट मी नो? वैसे तो मैं बता चुका हूं up to, let me pick the ball pen virtually, up to June, I must say there is again June 2021. मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें ऑडिट करनी रहेगी. June 21 up to 21 already sell 55 lakhs. राइटिंग इग्नोर करना, बस समझिएगा. एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई 10 lakhs सेल, तो अमाउंट किस पे TDS हमें डिडक्ट करना रहेगा? 10 lakhs only, 15 lakhs. One answer is 15 lakhs, 15 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. Oh, interesting one. Yes, 194 will be on 10 lakhs, 10 lakhs definitely. मेरे ख्याल से मोस्टली प्रतीक जी, संध्या जी और सब ऊपर भी आंसर आए हैं. 15 lakhs भी आंसर आया है. सरोज भाई का, ईशू जी, दीपक जी, राहुल जी. Liability will be on 10 lakhs only, right? Irrespective, योगेश जी, definitely 10 lakhs only. हमें अप टू जून कितना भी टर्न हो उसको, क्योंकि वो अप्लीकेबल ही नहीं था, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 50 lakhs वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा. और जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो जुलाई से टर्नओवर जो होगा उससे बाद ही अराइज होने वाली है, राइट? Now, shall at the time of credit of such sum to the account of the seller and
at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier, deduct an amount equal to 0.1%. Fine enough. Fine enough. मीनिंग देयर बाई जो टीडीएस का रूल है जैसा सब पे एप्लीकेबल होता है वैसा ही एप्लीकेबल होने वाला है, विच एवर इज अर्लियर। यहां मैंने एक सर्कल मार्क किया, विच एवर इज सॉरी एनी मोड, बात करेंगे उस पर भी कुछ ही देर में with the exam. Hello. Your PPT is not moving actually. Oh, is it? Oh, Yes, sir. thank you. Just wait for a while. Sometimes it happens. See whether it is Yes, no, it is not. now. Yes, sir. Please No, check no. whether it is moving. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Now this is fine enough. Next, non-applicability, fine enough. The provision of section, tax is deductible under any provision of this act, right? Then this particular section 194Q will not be applicable. Now see the next one, that is very important. If tax is collectible under the provision of section 206C other than the transaction to which subsection 206C1H applies, meaning thereby if 206C1H with a similar condition, थोड़ा सा मैं 2 मिनट डिस्कस करूंगा उसकी जो कंडीशन, उस पर हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करने वाले, विद अ सिमिलर कंडीशन, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करना है उस पर भी सिमिलर ही कंडीशन है, 10 करोड़ की, 50 लाख की, बट द नॉन अप्लीकेबिलिटी है 206C। अगर कहीं पे भी सबसेक्शन कोई भी चार्ज हो रहे हैं तब 194 क्यों नहीं आएगा, एक्सेप्ट 206C1H, मीनिंग देयर बाई अगर 206C1H अगर की एप्लीकेबिलिटी आती है तो आपको 194 क्यू पे आपको जाना रहेगा। तो क्या 206C1H पे भी TCS चार्ज करना है? इज इट? Thanks a lot for feedback. Now question, no, Ishuji saying yes, we need to charge TCS as well, 206C1H. Pratikji, no, if buyer is charging TDS, no. Meenalji is again say no, definitely, then no TCS to be collected, definitely. Let me come, no, yes, if both applicable then TDS only, Saroj, perfect. If 206C1H is there and simultaneously 194Q liability is there, then 194Q liability will supersede 206C1H. Only one TDS is there, TCS की liability नहीं रहेगी. Sir, what happened? Any answer? अगर 206C1H में TCS charge कर लिया, whether the buyer will be waived off from the liability under section 194Q, yes or no? Listen me, no, yes. Ishuji is saying yes, meaning thereby listen me carefully. If 206C1H is there, सेलर ने चार्ज कर दिया, तो क्या बायर को फिर नहीं चार्ज करना 194 क्यों? नो, यस, नो, आंसर दोनों आ रहे हैं। साक्षी जी का डायरेक्ट मैसेज है नो। Whether turnover defined under income tax act, हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। Buyer has no charge TDS. Buyer has to charge TDS, sorry. Yes, definitely. हमें बायर की अगर हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी लाइबिलिटी वेव नहीं हो सकती। Even though there was a lot of confusion when circular came, जो आया था, prior liability is of buyer is charged, then no requirement of seller. Definitely, Isha ji, definitely agreed. But sometime it happens. और ऐसा हुआ भी during that particular period. आपके सामने भी केसेस आए होंगे. I am doing some audit of
मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, तो वहां पे तो इतने ज्यादा केसेस थे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था उनको कि भैया टीसीएस सर चार्ज हो गया, हमें तो काटना ही नहीं है। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वो जो पीरियड था जुलाई अगस्त वाला, जुलाई अगस्त सितंबर वाला, फर्स्ट सेकंड क्वार्टर आई मस्ट से, वहां पे ये जरूर आप अच्छी तरीके से चेक करिएगा, क्योंकि कईयों ने तो अकाउंटेंट ने बाद में देखा भी नहीं है कि हाँ जी हो गया और काम खत्म। It's again a very crucial point as far as we being an auditor are concerned. That's why we are discussing this particular point. Now next we are moving forward. Some questions. Let's see whether value of goods purchased prior to 1st July 2021 is to be included for 50 lakhs. Yes, I have already taken. Whether GST adjustment needs to be done. अब जैसे 194Q की बात जब आती है, सर अमाउंट पे किस पे काटने का है? जीएसटी को एक्सक्लूड करने का है, वेदर वी नीड टू एक्सक्लूड दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी बेसिक वैल्यू, अंकुर जी परफेक्ट, बेसिक वैल्यू एक्सक्लूड जीएसटी पार्ट, एंड इफ देयर इज एन एडवांस, I agreed, Meenal ji, thank you for your prompt reaction. It should be very interactive, and we are here to discuss only. Note there is again no session is here. Now one question from my side: whether there is an advance, then what will happen? If let's assume total value, Pratik ji is saying total value. Meaning thereby, being a buyer, I need to pay some advance money. Let's assume 20 lakhs rupees. 50 lakhs वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो वो मैं सीधा पेमेंट कर रहा हूँ 20 lakhs रुपीज का, तो पूरा टोटल वैल्यू फिर एडजस्ट करना, सम बायर डिडक्ट टीडीएस ऑन फुल परचेज विदाउट डिडक्टिंग 50 lakhs. इफ दे डू सो, वेदर देयर इज एनी इशू, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम पर रिलेटेड है इससे, सम बायर डिडक्ट टीडीएस ऑन फुल परचेजेस विदाउट डिडक्टिंग 50 lakhs. If they do so, sir, it's again upon you. If you are buyer side है तो buyer side ज़्यादा TDS नहीं कटाना चाहेगा, तो ऐसे इशू कुछ नहीं है, ज़्यादा TDS भी कट गया तो ऐसे कोई ऐसा इशू नहीं है, you can claim, right? तो TDS is on payment definitely. देखो 206C1H is again drafting is very different, मैं बताऊंगा भी आपको. If we see 206C1H, that particular liability will come on consideration received. Here, if I talk about 194Q, liability come when credit or payment, whichever is earlier. So ये जो credit वाला part है, credit whenever we receive any invoice from the vendor side, we need to, और जो लैंग्वेज है, आप माइंड इट फ्रेंड्स, द लैंग्वेज विच इज यूज्ड, द सर्कुलर क्लैरिफिकेशन विच इज गिवन, दैट पर्टिकुलर जीएसटी कंपोनेंट यू शुड पार्क सेपरेटली, और इनवॉइस के अंदर अगर सेपरेट दिया गया है, पार्क सेपरेटली किया गया है, देन यू कैन एक्सक्लूड इट, देन यू कैन एक्सक्लूड इट, अदरवाइज यू कैन नोट, राइट? Is section 194Q applicable to purchase of capital goods? I believe all of you know the answer. Let's see. मेरे ख्याल से आने हम क्वेश्चन आंसर भी yes. प्रतीक जी is again welcome. Yes, yes. No need to explain. क्योंकि यहाँ भी हमने अगर मशीनरी परचेज, योगी जी, प्रियंका जी, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम सब ऑडिट, हम आप ये समझिए हम ऑडिट कर रहे हैं, तो कहीं भी परचेज की अगर बड़ी फिगर आ रही है, माइंड इट, प्लीज चेक 194Q. नॉर्मली हमें क्या होता है कि टीडीएस तो अप्लीकेबल ही नहीं है. वेट फॉर अ वाइल, जस्ट हैविंग सिप ऑफ वाटर, वेट फॉर अ वाइल. हाँ, तो हम ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं, आज का जो हम सेशन ले रहे हैं. हम ऐसा नहीं है कि हम 194Q को, ठीक है, पर हम ऑडिट के अंदर हमें क्या चीजें देखनी है, तो जो हम वेन एवर वी आर गोइंग टू prepare that depreciation chart, please be cautious. If there any asset is there, वैल्यू जिसकी 50 लाख से ज्यादा आती है या वेंडर के साथ 50 लाख से काम, तो प्लीज माइंड इट,
194Q की लायबिलिटी जरूर चेक करिएगा. नेक्स्ट is a seller exporting goods outside India, whether 194Q applicability. Seller exporting goods outside India. Seller, mind it, no applicable when deductee is resident. Seller exporting, seller is resident, seller exporting goods outside India, meaning thereby buyer is not seller. जो एक्सक्लूजन दिया गया है वो दिया गया है. यस, आंसर इज इन नो. आप सबने नो दिया, बट माइंड इट, जो लैंग्वेज की शुरुआत हुई है सेलर रेजिडेंट बोला गया है, पर बायर रेजिडेंट की बात नहीं कही गई है. बायर रेजिडेंट की बात नहीं कही गई है, पर ऊपर किसी का आंसर आया. माइंड इट, मैं जो आपका अटेंशन चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं हाँ, कि जो सेलर रेजिडेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन के अंदर, पर फिर बायर अगर रेजिडेंट है, आप समझिएगा, तो क्या फिर भी लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? अगेन आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं. सेलर रेजिडेंट है, देयर इज नो लायबिलिटी कि भाई सेलर रेजिडेंट है तो ही है, पर यहां बायर रेजिडेंट है तो भी मेरे ख्याल से आंसर क्या है? नो. बट यहां एक साफ दिया गया है कि अगर सेलर एक्सपोर्टिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, तो बाहर वाला है जो बंदा जो परचेज कर रहा है, अगर उसका यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, माइंड इट, ये ध्यान रखिएगा, तो 194Q अप्लीकेबल रहेगा. ये ऐसा नहीं है कि जैसा सेलर रेजिडेंट है तो ही अप्लीकेबल. यहाँ हम बायर की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात है. वेदर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, मेरे ख्याल से नो है, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले. Whether TDS to be deducted on the purchase of immovable property by the developer, या कोई भी परचेज करे. सेक्शन कवर्स अदर आइटम्स एज वेल सच एज स्टेशनरी, पेंट्री आइटम. मैं थोड़ा सा शायद हो सकता है आप किसी और एस्पेक्ट में कह रहे हैं, बट स्टिल मीनल जी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वेदर दिस पर्टिकुलर सेक्शन अप्लीकेबल होगा 194Q इमूवेबल प्रॉपर्टी. Any yes or no? No. Any reason why no? Yes. Pratik ji is saying yes. Immovable property पे तो काटना रहेगा TDS. Any reason? If someone who is in favor of IA, Saroj Bhai is saying IA, section IA is applicable. Definitely. If one another reason is there. IA के अंदर अगर आपका प्रॉपर्टी 50 lakhs के ऊपर है, definitely कृष्णा जी, already cover IA, and non-applicability of 194Q is if already covered any other TDS section, तो वहां पे liability नहीं आएगी. Fine enough. One more thing, immovable property is not covered under the definition of goods. This is again TDS on the goods only. तो ठीक है, दोनों हम रीजन कह सकते हैं. परचेज ऑफ ज्वेलरी, अच्छा बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है. देवाशीष साहू जी परचेज करने गए साहब, और घर के लिए चाहिए, राइट. अब घर के लिए साहब एक बड़ा अच्छा सा, जितेंद्र जी बड़ा अच्छा देवाशीष जी को पसंद आ गया एक बड़ा अच्छा सा हार, और उसकी कीमत है तकरीबन 70 लाख रुपए. आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं सोचो तो बड़ा ही सोचो, तो 5-7 लाख का हार नहीं लेना है हमें. उन्होंने 70 लाख का हार लिया. अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या अब टीडीएस की लायबिलिटी पेमेंट करते समय आएगी कि नहीं आएगी? नो आंसर. इफ कवर्ड if covered under tax audit. अभिषेक जी, आई थिंक मेरे हिसाब से इफ इट इज ट्रीटेड एज अ परचेज, तब तो पॉसिबिलिटी बिजनेस का पार्ट होती है. इफ मेरे ख्याल से जगजीत भाई जी बोल रहे हैं कि कटना चाहिए, बिजनेस का पार्ट बनती है. तो इफ इट इज ट्रीटेड एज अ गुड्स फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जैसे जीएसटी में से कंसीडर. अच्छा, राइट. आप कह रहे हैं कि अगर बिजनेस के लिए तो ठीक है. अब देवाशीष जी का आंसर आया नहीं, वो बोले 70 लाख पहले मैं मैनेज भी तो करना पड़ेगा. अभी तक वो शायद मैनेज करने की सोच रहे हैं. आ गया क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया. नो,
ऑन 20 लाख, ऑन 20 लाख, यस आंसर मेरे ख्याल से 70 लाख है, तो 50 लाख उन्होंने माइनस किया और 20 लाख बताया, शायद ऐसा बताया है, शायद जो आंसर देख रहा हूँ रजनी जी ने शायद। नो सर, आई एम नोट सर, आई एम नोट बायर ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट कि ठीक है, नोट कवर्ड बायर कैटेगरी। सर बायर कैटेगरी की बात की तो हियर वी नीड टू चेक, सबसे पहले आते हैं बायर। एनी पर्सन बीइंग अ बायर मींस अ पर्सन whose total sales, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crores rupees. Definitely this is the point. And अब बात आती है सेल्स पर्सनल यूज के लिए लिया। अब एक और इसको हम चेंज करते हैं, एक और चेंज करते हैं सीक्वेंस। यहाँ पे 2 पॉइंट में मिला रहा हूँ कि सपोज करो आप इंडिविजुअल हैं और आपका प्रोप्राइटरी फर्म है और 10 करोड़ से ऊपर भी फुलफिल हुआ, और फिर आप परचेज करने जा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं बिजनेस के लिए नहीं है ये, आप पर्सनल परचेज करने जा रहे हैं, देन अब स्टिल नोट यस एप्लीकेबल if sell 10 crore plus sell proceed over 50 lakhs irrespective of purpose। या यहाँ एक कुछ आंसर आया, एक बस वेट फॉर अ व्हाइल, दिस इज माई व्यू। दीपक जी ने एक आंसर दिया, मेरे ख्याल से मैं भी शायद इसी व्यू में हूँ। इफ सेल 10 करोड़ प्लस एंड सेल प्रोसीड ओवर 50 lakhs, जो हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस फॉर विच परचेज, आप समझिएगा जो टीसीएस लायबिलिटीज, यस 194Q की बात जब आती है, टीसीएस तो देखो वो सेलर जो है वो तो सेलर पे है, पर 194Q में पर्पस की बात कहीं नहीं गई है। स्टिल अब ये वाली बात आती है कि भाई परचेज ही नहीं है, कहीं पे पर्पस नहीं दिया गया। वाकई में जैसा आपने बताया, शायद दीपक सर ने बताया कि वो पर्पस नहीं बताया गया, यहाँ भी पर्पस की बात नहीं की गई है, राइट। तो माइट देर से बात की गई है कि लायबिलिटी विल बी देयर। सो दिस इज अगेन, नाउ नेक्स्ट इज whether additional allied and out of pocket expenses form part of purchase value of goods। तो क्या वहां पे लेट्स अज्यूम होता क्या है कि हम शायद देवाशीष, दिस इज नॉट परचेज फॉर माय बिजनेस, यस डेफिनेटली 194 आई एग्रीड देवाशीष जी, बट स्टिल पर्पस, जैसा कि अभी दीपक जी ने ऊपर बताया, पर्पस डिफाइन ही नहीं है, और 194Q पे भी पर्पस मेरे ख्याल से कहीं डिफाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, yes, definitely. But even if we deduct TDS for goods purchased for personal use, then how will be? Yes, definitely. It's again, यहाँ पे मैं क्या बोला, सर्कुलर क्लेरिफिकेशन साक्षी जी, अगेन हम यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, आप नॉन रेजिडेंट से देखो, आपका आंसर दे रहा हूँ साक्षी जी कि कंप्लायंस कैसे होगी। नॉन रेजिडेंट से अगर हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वहां पे भी एक बायर जिसका कोई टर्नओवर एक्सीड नहीं है सरोज भाई, तो भी उसको पूरा का पूरा 10 रजिस्ट्रेशन लेना रहता है और पूरे के पूरा रिटर्न भरना रहता है। इट्स अगेन टीडियस टास्क है, यहाँ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आना चाहिए इन सब चीजों के लिए। स्टिल लेट्स सी, डेफिनेटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एडिशनल, ये देखो, हाँ, yeah, definitely, Deepak ji, agreed, Deepak ji, Deepak sir, perfectly you have answered. It's again a view that we can take. Whether additional, allied and out of pocket expenses form part of purchase, देखो ये सब चीजें हमारे सामने ऑडिट में आने वाली है, और टीडीएस की लायबिलिटी आप समझिए, बीइंग अ टैक्स ऑडिटर हम सबको बड़े ध्यान से देखनी है। अब ये बात आ गई कि साहब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, फ्रेट लग गया, और क्या एक मैंने मशीनरी परचेज, लेट्स अज्यूम मशीनरी परचेज करी मैंने 70 लाख रुपीस की, और आती है प्रिंटिंग मशीन, मेरे क्लाइंट ने परचेज किया, प्रिंटिंग मशीन में बड़ी कॉस्ट आती है इन 5 करोड़ 4 करोड़, और साथ में फ्रेट भी आता है उसका इन लैक्स, मान लो 3 लाख का फ्रेट आया। तो मेरा क्वेश्चन अब यह आ जाता है कि यहाँ पे 194Q क्या मशीनरी की प्राइस पे ही रहेगा, अदरवाइज फ्रेट जो अमाउंट है उस पर भी अप्लीकेबल आएगा। नो टीडीएस ऑन
OPE पार्ट इफ मेंशन सेपरेटली, अदर जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस सेपरेटली ऑन द इनवॉइस, नोट ऑन फ्रेट। अब सर देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मुकेश जी इज ऑल्सो सेइंग, प्रतीक भाई इज ऑल्सो सेइंग, फ्रेट पे अगर आप 194C काट रहे हैं, if mentioned in the purchase bill then 194, let's see, if Sulabh ji is saying if mentioned in purchase bill then 194Q, otherwise respective, agreed. On total cost if it form part of fixed asset, agreed Rajni ji, bilkul. If it is included in the bill then applicable, agreed. I am also in the view. Whether seller can apply for certificate for loan, नहीं कर सकते, 206C1 है जो 194Q के लिए नहीं कर सकते, 0.1% है ओनली ऑन गुड्स। या डेफिनेटली। नाउ हम अब इस बात पे आते हैं क्या करना, कुछ आंसर आए, मैं उन्हीं को कंक्लूड कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो ऑन द सेम व्यू कि अगर परचेज प्राइस में इंक्लूड है जो ज़्यादा और हम उसको परचेज कॉस्ट ही मान रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम ऑन द व्यू 194Q अप्लीकेबल होने वाला है। हाँ, अगर सेपरेट बिल आता है और हम 194C पे हमारी लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, डेफिनेटली वो फिर परचेज का पार्ट नहीं रहेगा। सरोज भाई स्लाइड इज मूविंग राइट, इज इट? तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? या ओके। तो दिस इज द सिचुएशन। नाउ whether TDS has to be deducted on advance payment, इसका आंसर मेरे को देने की जरूरत नहीं है। अब व्हाट इफ परचेज रिटर्न हैपेंस, यहां पे दो पॉइंट है। परचेज रिटर्न हो जाता है तो क्या या हम कह सकते हैं कि जो परचेज रिटर्न हुआ उसका क्या हमें एडजस्टमेंट करना रहेगा? क्वेश्चन इज परचेज रिटर्न पे क्या हमें एडजस्टमेंट, ये भी क्लेरिफिकेशन आया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे यस एनी सम पेबल टू सेलर एज्यूम दैट इज पार्ट ऑफ बंडल सप्लाई। नहीं, बंडल सप्लाई जो है मेरे ख्याल से जीएसटी, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि जी परचेज का कॉस्ट है, तो खत्म बात। एडजस्ट ऑन द नेक्स्ट, एग्जैक्टली अमोद जी सेइंग एडजस्ट ऑन द नेक्स्ट परचेज। यस डेफिनेटली, यहाँ पे दो चीजें बोला गया वहां पे। अगर अब सिचुएशन अलग भी हो सकती है, उन्होंने सर्कुलर में जो क्लेरिफिकेशन दिया वहां दिया कि आप किसी आपने क्या किया, आपने परचेज किया, टीडीएस डिडक्ट किया, अब उसको रिटर्न कर दिया आपने, डेबिट नोट मान लो, तो वहां आप क्या करिएगा, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपको ज्यादा इफ देयर इज, हाँ मैं आता हूं दीपक जी, आपने सही मैंने कहा यहाँ दो सिचुएशन, आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहे हो जो मैं आ रहा हूं उस पर। अगर नेक्स्ट परचेज है तो नेक्स्ट परचेज में आप उस टीडीएस को रहने दीजिए, उसको आगे एडजस्ट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन जो दीपक जी ने पूछा है कि सर परचेज ही ना हो तो, शायद क्वेरीज आ रही हैं, हम एक काम करते हैं क्योंकि क्वेरीज रहेगी तो अब बाद में लेते हैं, क्वेरीज ज्यादा बेटर रहेगा, हम कवर करते हैं। अब एनी आंसर, अगर परचेज ही नहीं है तो फिर क्या करने का है भैया? एक परचेज की 70 लाख की हुई, काम खत्म, 20 लाख पे टीडीएस कटा, काम हो गया। मशीनरी परचेज थी साहब और हमने टीडीएस काट दिया, मशीनरी खराब निकल गई साहब, तेरे से परचेज ही नहीं करना। और प्रैक्टिकल सिचुएशन, वन आंसर इज गौतम जी सेइंग नो एडजस्टमेंट। मेरा भी व्यू ऐसा ही है वैसे। फिर कैसे करेंगे हम? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वो सिचुएशन सर्कुलर में कवर नहीं किया गया है। दूसरा सिचुएशन जो सर्कुलर में कवर किया गया है दैट इज, अगर आपने गुड्स रिटर्न किए और गुड्स वापस आ गए, लेट्स अज्यूम परचेज रिटर्न, हमारे पास कुछ परचेज आइटम आए, वो उस क्वालिटी के नहीं थे जो हमने मांगा था, हमने परचेज बुक किया, रिटर्न किया, कुछ इंफीरियर क्वालिटी के थे और वापस से हमारे पास गुड्स आ गए, तो फिर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि गुड्स रिप्लेस हो गए, राइट? तो नाउ आते हैं
whether the wait for a while, whether tax to be deducted, नहीं, whether the amount advance as a loan to seller shall come within the ambit of any provision, मेरे ख्याल से आंसर हो जाना चाहिए. हाँ भाई, whether the amount advance as a loan to seller, भाई सेलर को दे दिया भैया, एज अ लोन दे दिया. आप समझिएगा, सेलर है वो, मेरी कैटेगरी में सेलर दिखा रहा है, ध्यान से समझिएगा, सेलर है. पर अब जरूरत पड़ गई सेलर को, भैया कोविड के बाद में साहब चल नहीं रहा, तो पर आप मेरे को लोन दे दीजिए. है तो वो हमारा नोमेनक्लेचर उसका सेलर का ही है. नोमेनक्लेचर इज सेलर. तो क्या हमें 194Q का रिक्वायरमेंट रहेगा? नोमेनक्लेचर इज सेलर. सेलर ही है, हमने एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया एज अ लोन. तो क्या यहां टीडीएस का रिक्वायरमेंट रहेगा क्या? वेटिंग फॉर आंसर. नो. Nilesh ji, Manish ji, if loan, then I think no. If amount of loan to be refunded, then no TDS. If yes, definitely agreed with all of you. Thanks a lot for again your prompt action. नहीं, लोन पे ये applicable ही नहीं है. Since not a buying, Pratik ji is saying, and selling, absolutely Minal ji, absolutely, because money is not for purchase of goods. Definitely, जो theme है इस particular section का, तो उसके लिए ही नहीं है, तो हम उस पे नहीं जा रहे. Now, thanks a lot. Again, now question again. Whether tax to be deducted on purchase of goods by one branch from another, जैसा कि हमारे जीएसटी में हम देखते हैं छोड़ते नहीं है. वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें आंसर सिंपल सा है, नो. रीजन, क्योंकि एक ही पेन दूसरे अपने ही पेन का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता. राइट, इस पे नहीं जाना. एक किसी ने क्वेश्चन पूछा भी, मैंने आंसर इसलिए दे दिया क्योंकि आने वाला है. कैन ए सेलर अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, जो हम फॉर्म 13/197 की जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं लोअर डिडक्शन के लिए, वो यहाँ पे एप्लीकेबल. देखो 194Q के अंदर वैसे स्पेसिफिकली मैं जहाँ तक समझता हूँ कहीं नहीं कहा गया है, बट जो क्लेरिफिकेशन आया था 2020 में 206C1H का, वहाँ पे लिखा गया था सिमिलर फुटप्रिंट हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. Now, company, one question from your side, company whose, from my side to you, company whose turnover is 12 crores in immediate preceding financial year. Wait, let me take the ball pen, virtual ball pen. I must say, company whose turnover is 12 crores in immediately preceding financial year buys 75 lakhs capital goods, mind it, from a supplier. The agreement with the supplier is company whose turnover is rupees 12 crores in immediate preceding financial year. Oh, sorry, double repeat हो गया. The agreement with the supplier is 1 lakh share of the company whose fair market value is 75 lakhs shall be allotted to the supplier as consideration. TDS लगेगा. मैं वापस से क्वेश्चन बोलता हूँ, 2 बार रिपीट हो गई वो लाइन. 75 lakhs कैपिटल गुड्स सप्लायर से परचेज किए और उसका इमीडिएट फाइनेंशियल जो बायर है उसका 12 करोड़ टर्नओवर है. अब उन्होंने जो इसका लायबिलिटी जो डिस्चार्ज की गई है वो की गई है 1 लाख शेयर दिए गए हैं, फेयर मार्केट वैल्यू उनकी 75 लाख रुपीस है. क्वेश्चन अराइज कि अब टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा. आंसर शायद ये पहले के आंसर है, नो. इति शाह. एनी आंसर? Yes, payment by any mode. Yes, Amoji is saying again. Yes, Vipin Khandelwal ji. Yes. Definitely agreed with all of you. Not a single answer in a no or agreed. आप समझ गए correct? वो मैंने सर्कल किया था कि any mode, any sum payable by any mode, any sum payable by any mode. अब वो मोड कुछ भी हो सकता है, तो उस पे क्या है, टीडीएस की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी. राइट, ये सिमिलर क्वेश्चन है. अच्छा, ये एक और हम देख लेते हैं, शायद हमारे पार्टनरशिप में भी ऐसा हो सकता है, पर हमने क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लिया क्योंकि वो एडजस्टमेंट होगा पार्टनर के अकाउंट से, तो मोड कोई भी हो. फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. पार्टनरशिप फ्रॉम इनवॉइस गुड्स वर्थ रुपीज 60 lakhs 15/7/2021 टू पार्टनर ए सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस ए एंड कंपनी. पार्टनर को इनवॉइस किया, सेल किया, जिसकी प्रोप्राइटरी फर्म है पार्टनर ए की, ए एंड कंपनी, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के प्रोप्राइटरी फर्म को सेल कर रही है. एंड जो इसका कंसिडरेशन है
डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे सेट ऑफ कर दिया कि भैया वो पैसा ले गया, राइट। तो द टर्नओवर ऑफ ए एंड कंपनी 12, अब अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, 12 टर्नओवर ऑफ ए एंड कंपनी मतलब जो पार्टनर की प्रोप्राइटरी फर्म है उसका 12 करोड़ है इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये 21-22 मान लो, मतलब लास्ट ईयर 21-22, टेक इट 21-22, वेट फॉर अ व्हाइल, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। 21 नहीं सही है, लेट्स फाइन ट्यून, क्योंकि हम 21-20 इट्स फाइन इनफ। इरेजर, मीनिंग देयर बाई पार्टनरशिप फर्म ने सेल किया 60 लाख का और प्रोप्राइटर पार्टनर ने परचेज किया। अब क्वेश्चन, और दोनों का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से एक्सीड है, समझिएगा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों का टर्नओवर 12 करोड़ से एक्सीड है मतलब 10 करोड़ से एक्सीड है और 60 लाख का ये ट्रांजेक्शन हुआ है। क्वेश्चन ये आता है लास्ट जो मैं बात करता हूं, इज एबीसी एंड कंपनी लायबल टू कलेक्ट टीसीएस और इज ए एंड कंपनी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। मतलब कि दोनों की बात की जा रही है, क्योंकि सेलर तो है पार्टनरशिप फर्म और परचेजर है प्रोप्राइटरी फर्म ए एंड कंपनी, तो इनकी लायबिलिटी डिडक्ट टीडीएस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी लायबिलिटी 194 क्यू टीडीएस एंड ओवरराइडिंग, पर यहां बस डिस्कशन वाला पार्ट एक और भी है कि अगर आपका पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि उस पर भी लायबिलिटी आएगी। फाइन इनफ, मेरे ख्याल से इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते बात डिटेल्स। अच्छा लास्ट 17 क्वेश्चन, बाकी ठीक है। Whether buyer shall be treated as assessee in default if seller pays the tax due on the income declared in the return of income। वापस से समझिएगा मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ। Whether buyer shall be treated as assessee in default if the seller pays the tax due on the income declared in the return of income, meaning thereby seller ने वो income ले ली है तो क्या फिर भी वो assessee in default होगा? नो आंसर आ रहा है, नो। साक्षी जी कह रहे हैं यस, असेसी इन डिफॉल्ट मेरे ख्याल से सबसे सीरियस मेरे ख्याल से एक सेक्शन है। यस असेसी, 2-3 आंसर, अच्छा बराबर से आंसर है। इट हैज अ प्रूव्ड लेटर विनोद सर इज सेइंग, विनोद जी इज सेइंग इट हैज टू बी प्रूव्ड लेटर ऑन। अब देखो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो असेसी इन डिफॉल्ट नोट बट सीएस सर्टिफिकेट वुड बी, आई बिलीव प्रतीक जी इज सेइंग 26A, आप 27A मेरे ख्याल से करेक्ट वही है, वो 26A के बारे में ही कहना चाह रहे हैं। नो, यस और नो मिक्स आंसर आ रहे हैं कि नो, बट देखो यहाँ मैं आपको बता दूं असेसी इन डिफॉल्ट अगेन सीरियस इम्प्लीकेशन है। बीच में मेरे ख्याल से 2019-20 के आसपास मतलब फर्स्ट कोविड की वेव से 1.5 या 2 साल पहले असेसी इन डिफॉल्ट के बड़े नोटिस आए और बड़ी दिक्कत थी। डायरेक्टर को भी ले लिया, बुला लिया गया, प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजन है, आपको पता है ये सब बड़ा टीडीएस प्रोविजन है। टीडीएस आपने काट के जमा भी करा दिया तो भी नोटिस आ रहा है, इंटरेस्ट। देन अगेन अगर यहाँ एक और बात की गई है 26A फॉर्म की कि भाई वो आपने ले लिया कि भाई कवर है तो ठीक है वो दिया जा सकता है, कंपाउंडिंग भी होता है। अच्छा इज इट 27, आई बिलीव 26A है वो, माइंड इट हम चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। तो ये असेसिन डिफॉल्ट रहेगा, बट वो जैसा कि किसी ने बोला लेटर ऑन प्रूव किया जा सकता है इन द सेंस कि जो शायद आई बिलीव 26 है पर 27 है, लेट मी चेक, तो वो फॉर्म दिया जा सकता है सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भैया इनकम कंसिडर कर ली गई है, तो वहां बचा जा सकता है। नाउ थोड़ा सा मैं क्रक्स ले रहा हूँ, फिर आपस में इंटर केसेस कुछ एग्जांपल के साथ में, क्योंकि ऑडिट में वैसे केसेस हमारे पास आ सकते हैं, हम चेक करेंगे वो लायबिलिटी, और फिर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं कि नए जो सेक्शंस आए हैं उन पे, एंड देन अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उन पे बात करेंगे। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम बात कर रहे हैं टीसीएस ऑन कंसिडरेशन रिसीव्ड। बड़ा सिंपलर है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं लेने जा रहा, बट स्टिल क्योंकि मैं इंटर केसेस आपस में
इंटरप्ले भी बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा प्रोविजन हमें ये भी मालूम रहना चाहिए। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, जहाँ पे एम्फेसाइज करना है मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आपस में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो हम इंटरप्ले करने वाले हैं उसके लिए। Who receive any amount as a consideration for sale of any goods, mind it, who receive, the word which is used over here is who receive any amount as a consideration for sale of any goods of the value or aggregate value of such value exceeding 50 lakhs, एक बार में करे, दो बार में करे, एग्रीगेट होना चाहिए, 50 lakhs rupees in any previous year, mind it, separately देखना है। At the time of receipt of such amount, mind it, यहाँ which ever is earlier वाली बात नहीं है, TDS की liability कब आएगी, रिसीव करते समय। Collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakhs rupees as income tax, mind it। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता दूं, 0.7 जो हमारा रिलैक्सेशन था कोविड के कारण, वो अप टू 2000 मान के चलिएगा 2021 मार्च 21 तक ही था जो रिलैक्सेशन हमें टीडीएस के रेट में दिया गया था। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारा अप्रैल 21 जो हम जिस पीरियड की ऑडिट करने जा रहे हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन, तो वो पूरा का पूरा टीडीएस ही अप्लीकेबल है। इसमें भी रिलैक्सेशन था बट स्टिल ऐसा अब नहीं है। हमारे वाले पीरियड जिसके हम ऑडिट करने वाले हैं उसमें ऐसा नहीं है भाई। ये सब फास्ट करता हूँ, इंटरप्ले कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। Is it my voice is audible enough? Please let me know. Yes, sir, it is very much audible. Okay, so Vinay ji, might possible please check your side. Thanks a lot, Pratik ji, Minal ji, Saroj bhai. Thank you once again. Now, fast recap and just then we will see the interplay for the audit purpose only. कि ऐसे कैसे जाएंगे तो क्या होने वाला है और हमें आइडेंटिफाई लायबिलिटी को कहाँ करना है। पर्पस, टैक्स टू बी डिडक्टेड, 194 क्यों फास्ट, टैक्स टू बी कलेक्टेड, अप्लीकेबिलिटी बायर परचेजर में जहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं है, फास्ट करता हूं। सेलर, ट्रिगर कब अप्लीकेबल, कब अप्लीकेबिलिटी पॉइंट है, कब है, माइंड इट, मतलब एलिजिबिलिटी कब आएगी इसकी। टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट सेल फ्रॉम द बिजनेस ऑफ बायर शुड एक्सीड ₹10 crore, right, during immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। जहां आपका परचेज हो रहा है 22-23 के अंदर, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो हमें 21-22 देखना है। अगर हम 21-22 की ऑडिट कर रहे हैं, हमें 2021 देखना है। सेकंड पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, एक पे नहीं ट्रिगर होता, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए एलिजिबिलिटी की। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ एग्रीगेट वैल्यू exceeding 50 lakhs rupees, mind it। now TCS की बात करें, turnover gross receipt sale from the business of seller should be similar and the sale consideration received exceed 50 lakhs rupees, right। sale consideration receive, यहाँ पे receive की बात है, मैं ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूँ। effective date 1st July 2021, our audit period section 206C1H, ये लास्ट ईयर ही मतलब 2021 में आ चुका था। टाइमिंग ऑफ डिडक्शन, क्रेडिट और पेमेंट ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, विच एवर इज अर्लियर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। एडवांसेस वेरी मच कवर्ड और ये तो कलेक्ट पे ही है। रेट्स 0.1%, 5% इफ पेन नोट अवेलेबल, राइट, और 0.1% अमाउंट जो 50, देखो यहाँ पे 50 lakhs का आपको थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके ऊपर जो होने वाला है उस पर हम टीडीएस और टीसीएस की बात करने वाले हैं। 10 रिक्वायरमेंट यस और बाकी नॉन अप्लीकेबल। आप देखिए थोड़ा सा अपन एक बार डिस्कस करते हैं क्योंकि यही इंटरप्ले में काम आने वाला है। 194 की ऑलरेडी डिस्कस की, जहां पे टीडीएस का प्रोविजन लगने वाला है वहां पे नहीं होगा, और जो ट्रांजेक्शन टीसीएस पे जहां पे अप्लीकेबल हो गया एक्सेप्ट सेक्शन 206C1H, वहां पे ये अप्लीकेबल जो है होगा ही होगा। मतलब केवल 206C1H को छोड़ दें तो बाकी अगर कोई टीसीएस है तो अप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, एक 194O की भी थोड़ा सा मैं आपसे इस एक बार डिस्कस करके बता देता हूं क्योंकि वो भी आ चुका है, जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है उन केसेस में। सेक्शन 206C1H यहाँ पे क्या है, यहाँ तो सिंपल सा है,
अगर टीडीएस और टीसीएस की कहीं भी सेक्शन कोई आ जाता है, वहां ये नहीं लगने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? कहीं भी दूसरा सेक्शन अप्लीकेबल हुआ, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सक्लूजन ये एक बार छोड़ देते हैं, नोटिफाइड उसमें कुछ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बेसी, वो सब हम छोड़ देते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा फॉर्म्स, ये जो फॉर्मेलिटी है वो अलग बात है। यहाँ 194O की बात करना चाहूँगा। 194O क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर 1% आई बिलीव 1% जो है टीडीएस डिडक्ट करते हैं जब भी वो पेमेंट क्रेडिट विच एवर इज एवर वाला कॉन्सेप्ट है। जो भी उनके थ्रू जो सेलर को जब एडजस्टमेंट किया जाता है अकाउंट का कि भाई आपका इतना पार्ट है, ये आइडेंटिफाइड करने के लिए कि जो सेलर उनके पोर्टल पे आया है वो पूरी सेल दिखाए। एनीवन हैज फेसिंग एनी प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट अमेजन की? वहाँ पे कई बार ऐसा हो रहा है कि प्लीज लेट मी नो, मैं फेस कर रहा हूँ कि कई बार सेल मैच नहीं हो रही है और वो ज़्यादा सेल दिखा रहे हैं, रिटर्न कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एनीवन आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि कुछ लेजर मिसमैच हो रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे पे? क्योंकि ये ऐसा फोरम है ताकि हमें पता लगना चाहिए। यस, इन माई प्रवीण जी सिंह मेरा रेस्टोरेंट है। प्रवीण जी यहाँ पे नाम शेयर कीजिएगा, हम आपस में तो आपके रेस्टोरेंट से नेक्स्ट टाइम हम स्विगी जोमेटो के थ्रू क्रीम सेंटर ये वाकई में प्रॉब्लम है। हाँ, हम भाई सीए हैं, जहाँ पे पता लगता है कि सीए का बिजनेस है तो पहले प्रेफरेंस उसी को जानी चाहिए। तो वाकई में ऐसा प्रॉब्लम है और यहाँ पे तो हमारे साथ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं प्रवीण जी, तो उनके साथ प्रॉब्लम, और आई एम आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विद माय क्लाइंट कि वहाँ पे इवन आफ्टर रिमाइंडिंग सो मेनी टाइम्स कि सर हमारा रिटर्न आपने कंसिडर नहीं किया। प्रॉब्लम क्या आ रही है? दे आर चार्जिंग टीसी डिडक्टिंग टीडीएस 194O और उधर से टीसीएस भी जीएसटी का आ रहा है, तो वहाँ फिर आपका इनकम तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो कुछ सुन नहीं रहे। यहाँ एक बहुत बड़ा इशू, हम उस पर डिस्कस नहीं करने जा रहे। तो जहाँ पे 194O की टीडीएस की लायबिलिटी है वहाँ पे फिर 206C1H और 194Q कोई अप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। दैट्स इट, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, आगे चलते हैं। इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। अब आई रिक्वायर योर इनपुट एज वेल। अज्यूमिंग आप ऑडिट कर रहे हैं और 21-22 की हमारे सामने ये केसेस हैं और हमें आइडेंटिफाइड करना है टीडीएस की लायबिलिटी दोनों सेक्शन में कितने रुपए की है। राइट, और उसके बाद में हम आगे भी बढ़ेंगे। एक शायद वो 50 lakhs एवरी ईयर देखेंगे, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं भी लेने वाला हूँ। करंट ईयर अंडर सेक्शन 2 अज्यूमिंग प्रीवियस ईयर सेल एक्सीड 50। हाँ, हमें हर बार नया साल का देखना है। हमने पहले भी डिस्कस किया, वी नीड टू चेक एवरी ईयर फॉर ईच एंड एवरी सेलर दैट 50 lakhs threshold limit, we need to check every seller for every year. It's not like that if any seller cross the limit of 50 lakhs in the last year, we need to take straightforward in the current year and we will deduct or charge TCS on the additional amount, let's say 1 lakh rupees in 21-22. ऐसा नहीं है। Now my questions to all of you. Let me written over here, आज पेन नहीं है, 194Q and then 206C1. Please bear me. Now, first my question to all of you, require your input. April to June we are sitting on the audit. B, I think मैंने देख रहा हूँ एक blink हो गया, आंसर आ गया। B, purchase goods 1.5 crores from S, buyer seller. तो buyer whether 194Q liability is there? First question, please be with me. First question, no. Pratik is saying no because वो applicable ही नहीं है, हमारा audit period जो है उसमें वो not applicable, absolutely, तो यहाँ तो कोई liability नहीं है। My next question, ये तो अक्टूबर 2020 से applicable to 206C1H। My next question, 206C1H का कोई liability रहेगा क्या? Yes, आंसर रहेगा yes. Oh no, oh yes, TCS would be there. Oh, there. Oh,
Mixed answer. We are sitting on the seat of auditor. So now question, please revise. Yes, so is yes. Everyone is saying yes. शायद एक या दो. Yes, 206 is applicable. Rajneesh is also saying. Please think again. Oh, Yogesh is saying at the time of receipt. Oh, I think now everyone is thinking once again कि यार गलत तो नहीं बोल दिया. Yes, definitely. It's at the time of receipt. So 206C1H at this moment of time where purchase has been made by B on the seller S, no liability will be there. Clear? I believe it is very much clear. Now next question. In April to June only, B makes payment of rupees 1 crore 20 lakhs rupees. My first question is 194Q liability will be there or not? No. Now I believe no. Yes. No. Now what about 206C1H? On and how much amount will be there? कितना अमाउंट पे होने वाली है? दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वांटिफाई करने वाले अमाउंट को. 206C1H 70 lakhs amount. Pratik ji is saying yes रहेगा 70 लाख. Any different answer? Let's see. TCS yes 70 lakhs definitely. मेरे ख्याल से सब on the same footprint है. 70 lakhs absolutely. 70 lakhs. 206C1H. Now on 30th June. Yes, Yogesh ji, Sonali ji, Tarun bhai, Saroj bhai, absolutely. Now on 30th June, balance amount receivable by S, the situation is 1.50. 1 करोड़ 50 लाख का सेल हुआ, 1 करोड़ 20 लाख का पेमेंट हो गया और अभी भी 30 लाख बाकी है. Is any adjustment, is there any applicability of 194Q or 206C1H at this particular moment of time? Cut off 30th June. I believe there is no treatment will be there. Yes, no. Absolutely agreed with all of you. Yogesh ji, Gautam ji, Pratik ji. Now, next situation. Please be attentive. It's July 2020. B purchased goods 30 lakhs was balance. B again purchased goods of rupees 20 lakhs from S. Can anyone let me know 194Q applicability? And the amount as well. If there is 194Q, then yes, then amount. If no, then no. Yes, because 50 lakhs limit grows. Yes, 20 lakhs. I believe few answer is there. Sulabh ji, Ankur ji 20 lakhs. Pratik ji 20 lakhs. Ji is saying 50 lakh gross हो चुकी है. Praveen ji is saying no. हमारे ख्याल से आंसर है no. Yes. और Ankur ji again yes on 20 lakhs. I believe most of us are on the similar side. 20 lakhs rupees. Agreed. Reason, mind it, being auditor very important. जो अप्रैल से जून तक का टर्नओवर और जो रहेगा ट्रांजैक्शन वो 50 lakhs में काउंट होगा. Meaning thereby limit of threshold limit of 50 lakhs has been already exhausted. So liability on 194Q will be there here on 20 lakhs rupees. Agreed? L कर देता हूं, ज्यादा लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है. नेक्स्ट 206C1H की एप्लीकेबिलिटी. No need to check previous year purchase. It's again separate for every year. Separate for every year. I again repeating, it's again separate for every year. No need to check for the 2021 as far as 50 lakhs limit is concerned. Now what about 206C1H? Saroj bhai is saying no. Sir, ये तो पहले भी हम
एक बार ही वो बोलते हैं हम चोट खा सकते हैं, दोबारा तो नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक बात है, नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि सर ये कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। बी मेक फुल पेमेंट ऑफ 50 lakhs। भाई अब इतना ही बचा, 30 lakhs ओपनिंग था और 20 lakhs ये था, अब 50 लाख का पेमेंट कर दिया साहब। एनी लाइबिलिटी 20, पहले 194Q, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 194Q। ईशा जी शायद सही, नो 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 नो, 50 लाख का पेमेंट कर दिया। 194Q की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी पेड। वो तो 20 लाख पे पेड है रजनी जी, 30 लाख का क्या है? देयर इज पेमेंट ऑफ 30 lakhs। नो, सब मेरे ख्याल से फिर जाने देते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। लेट्स नो, व्हाट अबाउट 206C1H एंड अमाउंट 30 lakhs is before July, 30 lakhs on 206 before July, 30 lakhs बिफोर जुलाई। 30 lakhs समझ में नहीं आया, बिफोर जुलाई क्यों? 30 lakhs, why not 20 lakhs? Why not 20 lakhs? ऑन 50 लाख। अभी आंसर चेंज हुआ, 194 ऑन 20 लाख। yes 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 definitely, exactly. I believe we understand the crux of this particular section now. Thanks a lot for being there to answer these questions. Absolutely, on total payment 50 lakhs, meaning thereby then we need to charge TCS on 50 lakhs, but mind it, we have already deducted TDS on 20 lakhs. So 206C1H, the transaction that is already covered under any section of TDS will not be again covered under 206C1H, right? Exception. तो यहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटी आएगी 30 lakhs की आएगी TCS की, right? This is how this will play. हमें ये जो पीरियड है, आई अगेन सेइंग, द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, वहां आप जरूर देखिएगा, पीछे के बैलेंसेस देखिएगा, आगे क्या आ रहा है, क्योंकि बीइंग अ टैक्स ऑडिटर हमें ये टैक्स की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल देखनी रहेगी। दैट्स व्हाई वी डिड दिस एक्सरसाइज कि पहले का क्या आ रहा है, पहले का नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट क्या हुआ। और मैं आई बिलीव मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इस पर्टिकुलर पीरियड में, खास तौर पे जुलाई अगस्त वाला जो पीरियड है, वहां पे काफी ऊपर नीचे हुआ है, राइट? तो ये आपको देखना रहेगा। नाउ अब वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट पार्ट। आई बिलीव विनोद जी इज वांट टू से समथिंग। वैसे तो चलिए हम आज क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड देन बिकॉज आई एम गोइंग टुवर्ड्स टू नेक्स्ट पार्ट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप चैट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं। शेयर 194Q मैं आपको बता दूं, केवल वो ही बाहर किए गए हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफिकली लिखा गया है। स्पेसिफिकली 194Q में लिस्टेड सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा स्पेसिफिकली कहा गया है मनीष जी, स्पेसिफिकली। आप सर्कुलर रीड करिएगा तो आप, हाँ यस, आप समझ गए, तो मतलब उन्हीं को बाहर किया गया, स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। अब इस पे फाइट किया जा सकता है कि क्या है, पर मैं जहां तक समझता हूं उन्होंने स्पेसिफिकली जो बाहर किया गया है, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, साफ साफ स्पेसिफिकली, आप सर्कुलर रीड करिएगा मनीष जी, स्पेसिफिकली कहा। मेरे ख्याल से रोंगली हाथ कुछ हैंड रेज हुए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नए इंसर्शंस हैं उन पे जाते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंसर्शन नहीं है, बट स्टिल कुछ चेंजेस हुए हैं जो हमें ध्यान रखना है न्यू ईयर पे।
और अप्लीकेबिलिटी देखते हैं। नाउ प्लीज बी विद मी 194R। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट भी एसएससी के फेवर में चला गया। नमस्कार मोहित भाई। नमस्कार सर। शुड वी कंटिन्यू मोहित भाई? हाँ बिल्कुल सर प्लीज। राइट, थैंक यू। TDS on benefit or perquisite, आप देखिएगा, this applicable from 1st July 2022. We have already seen that any benefit or perquisite arising from the business should be considered as a business income. मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। डिस्ट्रीब्यूटर है, डॉक्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर ने, किसी ने टारगेट अचीव कर लिया, उसको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या थी आप समझिए मोहित भाई। बड़ा 56 इंची वाला, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं 56 इंची वाला टीवी बोल रहा हूँ। 56 इंची वाला टीवी गिफ्ट में कर दिया, क्योंकि 56 इंची आते ही थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। तो वो गिफ्ट में दे दिया साहब। अब वो आता है साहब 1.5 लाख का या 2 लाख का, व्हाटएवर। अब उसका साहब सामने वाला इनकम दिखा रहा नहीं दिखा रहा कुछ मालूम नहीं है। और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी उन्होंने कवर करने की भी कोशिश की। 190 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी इन द फेवर ऑफ एसएससी आए। उनको समझ में आ गया कि अब ये टीडीएस की फैमिली और बढ़ानी पड़ेगी, क्यू के बाद आर लेके आना पड़ेगा, लेके आए। अभी रुकिएगा, एस भी है आगे। तो वो आर लेके आया वो इसी को कवर करने के लिए कि भैया जो वो टीवी जो आपको एलईडी एलसीडी जो भी व्हाटएवर इट में भी मिल रहा है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, सब होगा, आपको बिजनेस इनकम में दिखाना रहेगा। गिफ्ट बांटने नहीं दिखाने तो जून तक आप समझिए पर इनकम में तो लेना ही रहेगा। तो जो ये ग्रे एरिया था, इट्स अगेन जोक्स अपार्ट कि भैया बांटने नहीं बांटने की बात अलग हो गई। बात ये है कि और वाकई में एक देखा जाए तो एम्बिट जो टीडीएस की है वो अब काफी वाइड होगी, क्योंकि जो सामने वाला जो गिफ्ट दे रहा है वो अब टीडीएस काटेगा। तो देयर इज नो वे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, जो मनी हो चाहे काइंड में हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीडीएस कटा आपकी इनकम है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस ओवर हियर। सो जो है एक्चुअली वो लेना पड़ेगा। यही कारण था कि उन्होंने इस सेक्शन को लेके आए। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि 194C पे नहीं कटेगा साहब, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो आप जो गिफ्ट दे रहे हैं, वो जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ बड़ा दिक्कत था। अब 194R में वो सारी एनोमली खत्म हो चुकी है। नाउ अब मैं आपके लिए वो रीड करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू वाइडन द डीपन द टेक्स्ट बेस, इट इज प्रपोज्ड टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन R. So please having sip of water. Insert a new section 194R in the act so as to provide a new levy of TDS at the rate of 10% on transactions specified. Mind it, transaction specified 28(4. मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, लैंग्वेज क्या है 28(4 की। The value of any benefit of perquisite, whether convertible into money or not, mind it, फर्क नहीं पड़ता, arising from the business or exercise of the profession is to be charged as business income in the hand of the recipient of such benefit or perquisite. उसकी इनकम तो है ही है। क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी? देखिए अभी एक्ट मोहित भाई, अभी एक्ट इनेक्ट हुआ, इन्होंने गलती क्या कर दी बिल के अंदर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो चेंज क्या हुआ एक्ट के अंदर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी 2-3 दिन पहले ये एक्ट हमारे पास सर्कुलेट हुआ, आप सबके पास भी आया होगा। मैं पर उससे पहले आपको बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा वर्ड जो यूज किया गया बिल के अंदर, इन ए केस वेयर द बेनिफिट और परक्यूजिट
as the case may be, is wholly in kind or partly in cash, mind it, and partly in kind, but such part is cash is not sufficient to meet the liability. देखो होता क्या है, आपने टीवी दे दिया साहब गिफ्ट में, पर वो जो टीडीएस का अमाउंट है आपको कैश में देना पड़ेगा, तो भैया हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे सामने वाले से लो, आप अपनी पॉकेट से दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. आपका कैश सफिशिएंट मीट होता है नहीं होता, वी आर नॉट कंसर्न्ड एट ऑल. The person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before releasing the benefit or perquisite, mind it, ensure tax has been paid up, sorry, ensure that tax has been paid. आप समझिए ये वर्ड यूज किया है, जो रेड है वो एक्ट में किया गया है, पहले जो ब्लैक वाला बोर्ड में देख रहे हैं वो वर्ड दिया गया था. क्या दिया गया था? एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड. अब इसका मीनिंग क्या लग रहा था कि भैया वो टैक्स तो जिसका टीडीएस कटना था उसने अपने रिटर्न में ले लिया, उसने टैक्स पे कर दिया, तो दिक्कत ही नहीं है. सर दिक्कत क्या है? फिर इन्होंने एक्ट के अंदर उसको आर में भी ऐसा ही किया, एस में भी ऐसा ही किया. That ensure, the word now has been replaced with ensure that tax required to be deducted has been deducted. Getting my point? In respect of the benefit of the perquisite, the threshold limit hai, that is 20,000 rupees. To a resident does not exceed 20,000 rupees. Right? Now, further, the provision of the said section shall not apply to an individual, mind it, or HUF whose total sales, gross receipt or turnover does not exceed 1 crore rupees in case of business or 50 lakhs rupees in case of a profession during the financial year immediately preceding the financial year in which the such benefit. बिल्कुल ठीक बात है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दिया गया. अच्छा, कैन एनीवन लेट मी नो, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा चेंज हुआ, अब मेरे को ईयर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. 44 AD बंदा ऑप्ट कर रखा है, तो क्या उसको भी टीडीएस काटना रहेगा? अगर वो बिजनेस ये जो गिफ्ट देता है, गिफ्ट इन द सेंस जो हम बात कर रहे हैं, perquisite benefit देता है, can anyone let me know if any assessee opt for 44 AD? इसमें लाइसेंस सेल फॉर ₹1 करोड़, थोड़ा सा शायद मैं समझ नहीं पा रहा, बट स्टिल लेते हैं हम क्वेश्चन. इसमें अच्छा सर, MEIS लाइसेंस सेल फॉर ₹, अच्छा ओके, टीडीएस एप्लीकेबल बात करता हूँ एक बार. ये पर्टिकुलर लाइसेंस वी नीड टू चेक, लाइसेंस सेल अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ, शायद ऊपर भी लिखा हुआ है शेयर गुड्स है कि नहीं है, मैं आता हूँ. क्वेश्चन हैं कुछ एक साथ लेते हैं, पर अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर टाइम है हमारे पास 15 मिनट्स में, मैं एक बार ये कवर कर देता हूँ, देन वी विल टेक द क्वेश्चन आंसर. मेरा क्वेश्चन अगेन रहा कि 44 AD असेसी है, क्या वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है ये परक्विजिट बेनिफिट क्या लगेगा? मैं तो आप बताइए कि आते हैं, अभी क्वेश्चन लेंगे, मेरे ख्याल से आंसर तो आ चुका है. क्या 40, यस रोहित जैन जी इज सेइंग यस. एनी अदर आंसर? मैं फिर कह रहा हूँ 44 AD नॉर्मली हम ये चीजें, आप देखिएगा बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं. मेरे पास काफी क्वेरीज थी, आपको मैं बता दूं, नोट इवन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 194R, our other section as well has been amended. Earlier it was written that individual HUF on whom 44 AB1 क्लोज जो है एप्लीकेबल होगा उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल दे हैज बीन अमेंडेड. नाउ द सिंपल लैंग्वेज विच इज ओवर देयर इज 1 करोड़ और 50 लाख. तो टैक्स ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा. अर्लियर इंप्रेशन वाज कि जिसका टैक्स ऑडिट होगा इंडिविजुअल एचयूएफ का उसको काट. अभी हमारे पास कहीं आंसर था, किसने बोला भी था, वो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है. मैं आपको बता दूं, शायद एक दो सेक्शन में कहीं मेरे को याद है, आई नीड टू चेक कि कहीं अभी है, बट स्टिल मोस्टली सेक्शन में ये सब चेंज हो चुका है.
जो अर्लियर ऑडिट वाला क्लोज था कि ऑडिट है तभी कटेगा, अब वो ऐसा नहीं है। अब सिंपल वर्ड यूज है जो कि यहाँ पे यूज है कि 1 करोड़ और 50 lakhs। अब चाहे आप 44 AD में हैं या नहीं है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, टीडीएस की लायबिलिटी रहेगी। माइंड इट, अपने सभी एसएससी को संभालिएगा। अभी तक हमने 10 नंबर भी नहीं ले रखा है, मैं फिर कहता हूं। और टीडीएस की लायबिलिटी आ गई, डिसअलाउंस फिर आप समझिएगा। हाँ, लेट इट बी। तो ये 194R हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर पे भी। अब आते हैं साहब एक और सेक्शन, दैट इज एस, जो नया इंसर्शन है। और बड़ा यू एंड क्राई वाला सिचुएशन कि साहब, और मैं आपको बता दूं ये जुलाई से एप्लीकेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है, दिस सेक्शन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। और इससे पहले का कोई क्लियर कट इवन 2021 के अंदर भी हमने, जैसा इवन काफी डिस्कशन भी था कई क्लाइंट के साथ, तो थैंक्स सर, डिस्कशन भी था कि क्या हम ये वर्चुअल जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी खास तौर पे एप्लीकेबल तो बाद में है ये सेक्शन 194S, तो अभी का ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अब कोई क्लियर कट इवन हमारे मिनिस्ट्री को इशू करना चाहिए। अब अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे पहले बार, पर स्टिल कई बात कहीं ना कहीं 2021 के लिए आएगी। मेरे सेशन भी हुए इस बात पे कहीं पे, तो वो नॉर्मल जो हम जिस तरीके से शेयर्स के साथ, जिस तरीके से ट्रांजेक्शन के साथ क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे हम अर्लियर जो हमारा 21-22 है, समझ रहे हैं आप, उस पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल कर सकते हैं। बिजनेस है या कैपिटल गेन है, इट इज लाइक, तो वो एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं अभी नए सेक्शन की। Again, similar mistake they did while drafting bill. Ensure the tax 1% has been paid. अब ये भी चेंज कर दिया इन्होंने, समझिएगा। तो आप जो भी पेमेंट करेगा, अगेन द सेम वर्डिंग विच इज यूज्ड ओवर हियर, वेयर कंसिडरेशन इज होली इन काइंड, कैश और काइंड या जैसा भी है, तो ये सब चीजें रहेगी ही रहेगी। तो अब बात आती है कि कंसिडरेशन ठीक है, हो गया सब कुछ, पेमेंट हो गया। वर्चुअल करेंसी में भी क्या होता है, दीज ऑल द थिंग्स आर इन वर्चुअल मोड, चला गया, पर टीडीएस का क्या पेमेंट हमें पॉकेट से करना रहेगा? सिमिलर थिंग इन द केस ऑफ आर, यस बिल्कुल करना रहेगा। वो एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये भी एक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, कैसे एडजस्ट करना है, राइट। तो ये चीज है जो एक नया सेक्शन मैंने फिर बताया, 1% टीडीएस रहेगा, पर एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम द जुलाई ऑनवर्ड्स, राइट। तो ये सेक्शन है। नाउ अब एक जो बात आती है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करना वर्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे एक अच्छा मूव किया कि जो छोटे इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। कौन सी? द कंसिडरेशन इज पेबल बाय ए स्पेसिफाइड पर्सन, सिमिलर ही वही है जिनका 1 करोड़ और 50 लाख, पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब कि जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उनकी बात की जाए तो 50,000 के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन नहीं है, नहीं कटने वाला टीडीएस। और इन अदर केस द स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा जो है, जैसे कोई कंपनी है या एटसेट्रा है, तो वहां पे ये थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है 10,000 की, राइट। तो ये 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है। तो ये और स्पेसिफाइड पर्सन का मैंने आपको बताया कि एचयूएफ और इंडिविजुअल ये पहले से हट चुका है, टैक्स ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट अब ये आ चुका है। एक और जो चेंजेस हुआ वो मैं आपको लेके चलता हूँ।
और फिनिश करता हूं उस डिस्कशन को, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। अब बात करते हैं 206 AB और 206 CCA की। राइट, आप सबको पता है हायर रेट पे टीडीएस डिडक्शन। राइट, अब हायर रेट पे टीडीएस डिडक्शन, तीन चीजें यहाँ पे बताई गई, मैं आपको फिर मैं रिमाइंड करता हूं। आप देखिए नीचे यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, और इनकी कंडीशन भी मैं बता देता हूं कि कंडीशन क्या थी। कि कंडीशन ये थी कि प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर के अंदर रिटर्न फाइल नहीं हुए और टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गई है, और साथ ही साथ हर एक ईयर के अंदर जो टीडीएस प्लस टीसीएस का अमाउंट है वो 50,000 से एक्सीड करता है। समझ रहे हैं आप? यानी दो कंडीशन थी, इसको वाइडन और कर दिया गया, बता रहा हूं कैसे। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा आप समझिएगा। अगर ऐसा होता है तो इन सब में से हायर रेट लगेगी, टीडीएस टीसीएस एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन, पर्टिकुलर सेक्शन है। रेट इन फोर्स जो फाइनेंस एक्ट में दी गई है ट्वाइस उसका, और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। मान लीजिए 10% दी गई है कोई ऐसा सेक्शन, वैसे तो खैर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल इनमें से जो हायर है उनके ऊपर ये लायबिलिटी लग जाएगी टीडीएस की। बट यहां चेंजेस क्या हुआ आपको मैं बता दूं, और सिंपलर वे में मैं ले जा रहा हूं कि ये जो 2 इयर्स की जो चेकिंग की है फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, अब इसको 1 ईयर कर दिया गया है। राइट, तो वो वाली बात रहेगी कि क्या इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1 साल ही देखना है? बिल्कुल 1 साल ही देखना है। तो आप समझिएगा अगर पिछले साल रिटर्न फाइल नहीं हुआ और जो 50,000 का लिमिट है वो भी उसी साल में देखना है, तो इसका स्कोप और बढ़ने वाला है। एक और चेंजेस हुआ, वो भी इन द फेवर ऑफ द असेसरी। आपको पता है ये जो 206 AB के जो सेक्शन है ऑलरेडी डिफाइन थे, 192, 192A लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटाइजेशन, इतना 194N इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है रेट वाला, टीडीएस वाला। हाउएवर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन इंडिविजुअल और HUF, समझिएगा अब ये 3 सेक्शन देखिएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ 3 सेक्शन देखिएगा कि 194IA इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, मैंने IB रेंट ऑन प्रॉपर्टी वाला, और M जो इंडिविजुअल HUF को पेमेंट करना है ऑफ द एक्ट, तो ये भी अब इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप, मैं फिर कह रहा हूं जो वाइडन है वो जो स्कोप है वो अब और बढ़ गया है। इस डिफॉल्ट का हायर रेट का 1 ईयर हो चुका है 2 ईयर से, और जो क्राइटेरिया है वो 1 ईयर प्लस 50,000 इन दैट पर्टिकुलर ईयर। समझ रहे हैं आप? तो ये एक और वाइडन हुआ। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जा सकते हैं। अच्छा राइट, एक और चेंजेस था जो आपके सामने है, 194IA वाला। 194IA वाला आपको पता है हमारा 2 सेक्शन है, 50C और 40CA आई बिलीव। वो सेल कंसिडरेशन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों की बात करते हैं। राइट, और हमारे यहाँ पे 194IA जो इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर है वो केवल सेल कंसिडरेशन की बात करता था। अब यहाँ पे दोनों बात कर दी गई है, सेल कंसिडरेशन एंड द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, वहां पे 1% टीडीएस कटेगा। राइट, 1% जो टीडीएस रहेगा कटेगा। एप्लीकेबिलिटी शायद 1 अप्रैल से ही हो चुकी है इसकी, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा अगर ऐसा भी हो रहा है तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल से ये नए सेक्शन जो इनकॉर्पोरेट हुए और ऑडिट के हिसाब से 194Q, 206C1H, और जो हम बात कर रहे हैं 194O की, वो हमने देखा, और हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, ओवर टू यू जितेंद्र जी। मैं स्टॉप करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं सारी चीजों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
I request respected members to please share your queries if you have any question. You can share your queries in chat also. मेरे ख्याल से अनम्यूट भी कर सकते हैं. Yes, yes. Either way, sir. Chat or unmute. So there is a query from Manish Nagpal ji. Please explain unlisted shares. अनलिस्टेड शेयर तो सर जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड शेयर. There is also a query from Shakshi Gumbar ji. Query: if a person taken building on rent and paid electricity charges exceeding 50 lakh directly to electricity company, though bill is in the name of landlord, who should bear the TDS? एक सेकंड में चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ. सैलरी पेड टू फॉरेन एम्प्लॉय. एक सेकंड. सैलरी पेड टू फॉरेन एम्प्लॉय इन फॉरेन करेंसी. टू फॉरेन एम्प्लॉय इन फॉरेन करेंसी. LLP incorporated in India. TDS to be deducted as per 192 195 आना चाहिए मेरे ख्याल से. नहीं है. अगर आप फॉरेन का ही है, बाहरी पेमेंट है, आप समझिएगा. आप कह रहे हैं सब कुछ. अगर इंडियन बंदा वहाँ पे आपके यहाँ पे रेपुटेड है तो 192 एज टैक्स स्लैब ऑफ इंडिया करेक्ट. नहीं, अगर बाहर का ही नॉन रेजिडेंट है, आप समझिएगा, नॉन रेजिडेंट है तो 195 आएगा. एक क्वेश्चन ऊपर अच्छा था, वो शायद था डिसअलाउंस होगा कि नहीं होगा. 40 मेरे ख्याल से कहीं छोड़ गए अपन. थैंक यू पुनीत जी फॉर कॉम्प्लीमेंट. मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था कहीं पे. शायद क्वेश्चन था कि ओवरराइड करता है 44 AD, डिसअलाउंस होगा कि नहीं होगा. शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन था. So there is a question of Shakshi Gumbar ji. I'm posting again in chat box. थोड़ा सा सर. हाँ अगेन. हाँ क्वेरी. Person taken building on rent and pay electricity charges exceeding 50 lakhs directly to electricity company through bill is in the name of landlord. Oh. Who should bear the TDS liability? So it again ultimate liability तो देखा जाए तो ये सब दिक्कत प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी. यूज जो कर रहा है पर अल्टीमेट जो लैंडलॉर्ड है और जो रिपोर्टिंग भी होगी वो लैंडलॉर्ड के नाम से ही. तो लैंडलॉर्ड कहीं ना कहीं पिक्चर में रहेगा ही रहेगा. अब उसको जस्टिफाइड करने वाली बात होगी अल्टीमेट लायबिलिटी ऑन रिकॉर्ड लैंडलॉर्ड की. इसलिए कई बार प्रॉब्लम भी आ सकती है कि कई बार क्या होता है, आपने भी देखा, हम जब MCA की बात करते हैं MCA की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि ओनर कोई और होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम ही चेंज नहीं करवाया. अब इसको दोनों मोड में यूज किया जा सकता है क्योंकि अल्टीमेटली क्या आप डिस्चार्ज कर रहे हैं. तो देखा जाए तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो अल्टीमेट लायबिलिटी ऑन द टेनेंट, और वो आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप समझिएगा. पर जैसे आपको मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, आपने वो केसेस देखे होंगे जहां पे दो जॉइंट, आप एग्री करेंगे, जहां पे दो जॉइंट होल्डर रहते हैं और पेमेंट किसी नाम कर दिया, पेमेंट दूसरा बंदा कर रहा है, जो प्राइमरी होल्डर है उसके नाम पे प्रॉपर्टी सेल का नोटिस आ जाता है. जबकि देखा जाए तो ये केसेस डिसाइड हो रखे हैं, जो पेमेंट करता है, जिसके अकाउंट से पेमेंट जाता है, तो वो अल्टीमेट लायबल है. तो ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ वाली बात आ जाएगी. ऑन रिकॉर्ड तो रिपोर्टिंग की जब बात आएगी तो लैंडलॉर्ड ही रहेगा. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट पे ये मेरे ख्याल से नहीं रहेगा. स्टेट गवर्नमेंट TCS नहीं रहेगा. और शायद एक बार TCS 206C1H स्पेसिफिकली गिवन, और इसमें भी आ गया है स्टेट गवर्नमेंट 194Q में भी आ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कही गई है, एग्रीड. और एक आ रहा है शायद सर सेल ऑन MEIS लाइसेंस, शायद किसी ने रिप्लाई भी किया था, ये कवर है अंदर गुड्स के अंदर, तो डेफिनेटली करेगा. क्योंकि आई वाज नीड टू चेक MEIS लाइसेंस, तो मेरे ख्याल से किसी ने कॉन्फिडेंटली आंसर किया था. तो हु विल बियर द TDS इन 194R? नहीं, जो पेमेंट कर रहा है TDS, जो मतलब परक्यूजिट दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, वो बियर करेगा TDS की लायबिलिटी. Any other question? There is a question from Sanjeev Garg ji. Whether 194Q applicable on issue of shares of unlisted company? Yes sir, it sounds again very, मैंने आपको उस समय भी बताया कि इवन आई नीड टू चेक अगेन. कल ही मैं ये जब देख रहा था तो स्पेसिफिकली सर्कुलर पे लिस्टेड
मतलब शेयर ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मैं रुको आपको शो करता हूँ, मेरे ख्याल से जितेंद्र जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको शो करता हूँ, डिस्कशन वाला पार्ट है, वेट फॉर अ वाइल। फास्ट फिनिश भी करते हैं मेरे ख्याल से। प्लीज गिव मी अ नोट वेदर सर्कुलर इज इवन अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जितेंद्र जी शायद सर्कुलर है सामने। Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Please see this 4.12. In order to remove such difficulties, it is provided that the provision of section 194Q of the Act shall not be applicable in relation to transaction in the securities and commodities which are traded through recognized stock exchange or cleared and settled by the recognized stock exchange. Getting my point? तो आप समझिए जो ये कहना चाह रहे हैं। Any other question? मैंने आपको बताया परचेज रिटर्न के बारे में, शायद अभी अंकुर जी ने क्वेश्चन किया है। परचेज रिटर्न के बारे में दो ऑप्शन है, मैंने उस समय भी डिस्कस किया था कि अगर आप नेक्स्ट परचेज में परचेज रिटर्न हुआ, देन यू कैन एडजस्ट इट विद द नेक्स्ट परचेज जो ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके सेलर के साथ में। अदरवाइज वहां एडजस्ट हो जाएगा। अगर गुड्स रिप्लेस हो रहे हैं तो वहां एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां आएगी कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो वहां तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, किसको एडजस्ट करना। एक और क्वेश्चन था शायद 50 lakhs, हाँ every year 50 lakhs every year. The question here is whether issue of share is equal to trade of share. नहीं ऐसा नहीं है, कंपनी इशू कर रही है, ट्रेडिंग नहीं मानी जाती उसको। सेक्शन 44AD, हाँ ये क्वेश्चन स्टिल बी हाँ एनी आंसर ऑफ दैट, ये क्वेश्चन ही मैं ढूंढ रहा था शायद। वेदर एनी टीडीएस डिसअलाउंस इन केस ऑफ 44AD, ये क्वेश्चन ही मैं सर्च कर रहा था शायद जब बात कर रहे थे। आंसर रिक्वायर्ड, एनी डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 44AD if TDS not deducted. Any? No. आंसर ठीक है, पर सर फिर तो should not be disallowed but penalty for non deduction। हाँ ये एक और पॉइंट है यहाँ पे, override everything। प्रीति जी saying no, agreed। एक और पॉइंट है यहाँ पे, पेनल्टी ठीक है, फाइन इनफ, assess in default, वहां फिर वो दिक्कत आ सकती है, राइट? नो डिसअलाउंस, हाँ एग्रीड तवीश जी, मैंने वही बोला, assess in default। Any other question? I request all members to please share your queries over. In case of auction of property by banker under the subsidy, should the buyer quote the pain of the bank and pain of the original owner while making TDS under section? In case of auction of property by bank under subsidy Act, should the buyer quote the pain of the bank or pain of the original owner? Sir, one more thing here, 194Q as well. In case of auctioneer, like in your case, who was asked this question? Raghav Vithalji, sorry for any mistake in pronunciation. 194 in auctioneer, in case of auctioneer, जो एक प्लेटफॉर्म देता है उसकी कहीं कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी, और इट वाज क्लियरली कि उस auctioneer is only a platform. He will not decide any final amount. It depends upon final negotiation between buyer and seller. Getting my point? So he nowhere will be liable for any deduction as far as 194Q is also is concerned, right? Or in your case as well, Raghav Vittal ji, in the same front में ऐसा ले रहा हूँ। जो वर्क एक्सपेंसेस, आप जो वर्क एक्सपेंसेस सर्विसेज है, सर्विसेज पे सी, अगर सर्विसेज पे
आप जे काट रहे हैं या सी काट रहे हैं, वट एवर जो वर्क वाला काट रहे हैं, तो फिर 194Q नहीं आएगा। गुड्स पे एनी अदर, और अदरवाइज वी शुड प्रोसीड फॉर फाइनल। जितेंद्र भाई आप प्रोसीड कीजिए। आई थिंक अभिषेक सर ने पूरे डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और there is no further doubt. I guess there is no other queries from members. So thank you, Abhishek Jain sir, for such a nice and interactive session. It was very insightful one. May I request our chairman Mohit Singhal ji for his thank you address. Over to you, Mohit ji. Thank you, thanks a lot, Jitendra bhai. And first of all, namaskar Abhishek sir. नमस्कार Though मोहित I भाई। late the join, but I listened the entire session, sir. And really, the strength of the audience will automatically answer all about the session, sir. We have more than 300 plus members with us, so that would be the great thing. And definitely, sir, you have explained all these intricacies about the TDS in a detailed way and a practical manner. Thank you, Abhishek sir, for being with us as always over a single call. Thank you, thanks a lot. And also, I would like to thank each and every member of this profession who have joined us with us in such a large number. Without you, none of the program, none of the webinar, seminar is possible. Thank you. Thanks a lot for joining in a big number and getting all the details in respect to such sessions, such seminars. Thank you. Thanks a lot. Have a good day. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you, Mohit bhai. Thank you, Jitendra ji. Thank you, sir. Thank you.